गुर सिद्ध माहे एक टहनो प्रभ की दिशा। एक सिद्धन दिस आहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा कर जुगो जुग अटल छतर दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। इस लड़ी नाल जुड़न तो पहला जो अज बहुत महान पवित्र गुरपुरब है, 5वें पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु शांति दे पुंज बाणी दे बोहित गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे शहादत दा जो समुचा सिख जगत पिंडां थावां तो लैके देशां विदेशां तक अज बहुत शरधा सत्कार दे नाल मना रहा है। दीवान सजे हुए हैं, शबीलां लगियां होईयां ने और एक स्नेहा देने की कोशिश की जा रही है सिखां वल्लों गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी की उम्मत वल्लों कि भाई भावें साडे गुरु नूं तती तवी ते बिठा के उन्हां दे सीस विच तत्ता रेता पा के उन्हां नूं ऐसे तसीहे दिते गए जिहदी शायद कोई दूसरी उदाहरण
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀ ਗਰਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਗਰਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਹ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੜਪੂੰਜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਛਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਦੇ ਧਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਨਗਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਲਟਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਗਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਜਰਾਬਾਂ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਰਾ ਸਦੀਵ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨੰਗ ਪੈਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਪੜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੁਰਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀਜੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਏ ਭਾਈ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਭਾਈ। ਖੁਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘਿਆ ਜੂਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਏ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਇਆ, ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਤਾ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਜੀ 3-4 ਘਰ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ? ਆਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਧਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੂੜਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਦਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ। ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਧੀਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਠੋ, ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹ ਪੀਓ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਣੀ ਪੈਗੀ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿ ਕਾਕਾ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸੌਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਣੇ
भाणे दे विच यह है कि जिथे मालिक ने रखिया है, मालिक ने कहा इत्थे बह जा, बैठे आ। उन्हें पाउण लई कपड़े देते, पा ले, उन्हें रोटी देती ते खा ली, नहीं दिती ते मंगनी नहीं है। जे नहीं कपड़े दिते तो रौला नहीं पाना, इनू भाणा कहते हैं। भाणे का अर्थ है मालिक दी रजा विच रहना, जिवें रखे जिव जिव वो मालिक चलावे रखे उवें उवें उफ नहीं करनी। कि गुरु अर्जन साहब पिता महाराज नूं तवी ने उन्हां दे पंज भूतक शरीर नूं, उन्हां दी जिहड़ी शरीर दी ये स्किन सी, चमड़ी सी, कि इस नूं उन्हें झुलसिया नहीं होएगा, साड़िया नहीं होएगा। असीं कहने छाले छाले हो गए सी। कि ਉਹਦੀ कोई दर्द नहीं होएगी, कोई पीड़ा नहीं होएगी? जरूर होएगी, पर कदे किसी ने सुनिया ना। की आख्या गुरु अर्जन देव पिता जी ने? सतगुरु जी दे बचन ने, मीत किया सोई हम माना। जो मेरे मित्र ने कीता मैं मान लिया। मीत के करतब कुशल समाना। रब कौन है? रब मित्र है। मैंने एक बारी शायद कथा करदिया मेरे मुंह तो शब्द निकल गया होएगा, मित्र वास्ते, दोस्त वास्ते, कि असी उहदे लई यार शब्द भी यूज करते हैं। एक सज्जन का फोन आ गया, कहता जी ये तो शब्द ही गलत है। फिर उन्होंने किन्ने ही शब्द सुनाने पे। गुरु कलगीधर पिता महाराज ने रब नूं संबोधन होंदिया कहा है, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा। हुण गुरबाणी विच शब्द आउंदे ने, सुन यार हमारे सज्जन। हर अखर दे असी अर्थ गलत कढ़ण की कोशिश सानू नहीं करनी चाहिए। सच्चे पातशाह ने यह शब्द मित्र वास्ते वरते है। ये बैड सेंस विच नहीं है कि सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंती आ। आख्या भाई मैं अपने मित्र दे कीते नूं, करतब नूं कुशल समाना मन्निया। मैं नहीं मानता कि उस रब ने मेरे वास्ते कुछ माड़ा कीता है। असी साडे चों ये हुण तुसीं अपने आप नूं वेखना है। साडे चों दा मतलब ये नहीं कि आप गवांढियां नूं जां दूसरे नूं चेक करना शुरू करिए। साडे विचों आपां किन्ने आ जिहड़े सिर्फ बाणी इस करके पढ़दे भी गुरु दा हुक्म है पढ़नी है। जिहड़े इस करके पढ़दे आ असीं नितनेम करांगे, नितनेम तो बाद असीं सहज पाठ करांगे। जदों सहज पाठ कर लिया फिर असी गुरबाणी दे अर्थां दे नाल पाठ करांगे। पर किन्ने क बंदे करदे ने? साडे चों जपजी साहब सारे नहीं पढ़ते, जाप साहब नहीं पढ़ते, सोइए नहीं पढ़ते, चौपाई आनंद साहब नहीं पढ़ते, सोदर दा पाठ सारे नहीं करते, सोहले दा पाठ सारे नहीं करते। की करते ने? सुखमनी साहब करते ने। तुसी पूछोगे भी ये बाणी नहीं बाणी है, पर बाणी तो जपजी साहब ही है। फिर जपजी साहब क्यों नहीं पढ़िया, सुखमनी क्यों पढ़िया?
किते ना किते मन विच एक गल आउंदी है कि सुखमणी पढ़ांगे तो सुख भी मिलेगा तो मनी भी मिलेगी। मनी दे अर्थ असीं पैसे कर ले, मनी अंग्रेजी दी बना लई, सुख पंजाबी दा रख लिया। असीं दुख भंजनी दा पाठ करते हैं, असीं सोहले दा पाठ नहीं करते। सतगुरु कहते रोज अपना सोहला पढ़ लिया कर। आ जिहड़ा करोना आया ना, ये कईयां दा सोहला भी नहीं किसी ने पढ़िया। नहीं तो आपां नूं ये लगता भी कोई नहीं जी, सोहला तो मेरे मगरों अगले ने पढ़ ही लेना है। नहीं, इस बीमारी ने कईयां दा सोहला नहीं पढ़िया, नहीं पढ़न दिता बीमारी ने। इस करके अपना सोहला आप ही रोज पढ़ना है। गुरबाणी थानू एक गल समझाउंदी है कि कहो नानक करते कियां बातां, जो किश करना सो कर रहे आ। रब दियां गल्लां करया करो, जो रब ने करना है वो कर रहा है, ये विच बदलाव नहीं जी होना। सियाणे कहंदे भी जे सामने वो बिल्ली आ जाए तो कबूतर अखां बंद कर लवे तो की बिल्ली मुड़ जाएगी? नहीं, बिल्ली नहीं जी मुड़दी। कबूतर दे अखां बंद करन नाल बिल्ली दा काम सौखा हो जाता है कि वह बैठे नूं ही आके झपट लैंदी है। जे कबूतर वांगू किते चूहा भी अखां मीटदा ते धरती ते चूहे हुण तक मुक जाने सी। वो तो बिल्ली मासी नूं वेंदे ही भज पैंदे ने, कहंदे चल। कोई विरला ही चूहा बिल्ली दे हत्थ आउंदा है, सारे चूहे नहीं आउंदे, पर कबूतर झट हत्थ आ जांदा है। सानू गुरबाणी एक गल समझाउंदी है, हुक्म रजाई चलना। वाहिगुरु दे हुक्म विच उहदी रजा दे विच चलना है, उहदे भाणे विच चलना है। हुण किड्डी वड्डी गल है। पुछो गुरु अर्जन साहब महाराज कौन ने? गुरु अर्जन दे पिता महाराज सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास महाराज दे सब तो छोटे पुत्र ने। वेख लो तो छोटा पुत्र कितना लाडला होता है। आपां ते सारे गृहस्थी हैं, आपां नूं पता है वड्डे बच्चे दी घर च की थां है, छोटे दी की थां है। इहदा अर्थ नहीं हुंदा भी घर विच सिर्फ दो ही बच्चे हुंदे ने, बाकी बच्चों की थां कोई नहीं हुंदी। नहीं, वाधू बच्चा किसी के घर च नहीं हुंदा। चलो हुण ते फैशन मेरी कौम ने मान लिया है कि हम दो हमारा एक, कि इको ही बच्चा जमना है। ते एक बच्चा जमण तो बाद सारी उम्र उस बच्चे की खातर दवाइयां खाने असीं, सारी उम्र। जे बच्चे की सेहत नहीं ठीक तां मर गए, जे बच्चा पढ़िया नहीं तां मर गए, जे बच्चा घरों रुस के चला गया तां मर गए, जे बच्चे नूं नौकरी ना चंगी मिली तां मर गए, जे बच्चे का अगों विआह ना संजोग ना प्रगट होए तां मर गए। साडे माँ बाप नहीं सी मरदे, 5-7 बच्चे हुंदे सी, कोई फिक्र ही नहीं सी। जिहड़ा पढ़दा पढ़ लवे, जिहड़ा नहीं पढ़दा आपे घर पट्ठे पा लेगा। जिन्हें रोटी खा ली ठीक है, जिहड़ा नहीं खांदा आपे रात नूं उठ के टोकरी थल्लों कढ के खा लेगा। जे कोई एक अद्धा रुस के नानके भूआ घर चला जाता सी ते मगरों लैण नहीं सी जांदे, कहते सी आपे 6 महीने धक्के खा के आ जाएगा। ये एक बच्चे दे फैशन ने सानू दवाइयां खवाइयां ने। तो जे किते असी मालिक दी रजा दे विच भाणे विच हुंदे तो शायद अज मेरी कौम नूं इस त्रासदी विचों भी ना लंघना पैंदा कि असी घट गिणती। एक गल सारे कहंदे ने साडे नाल जी अन्याय हुंदा है।
ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਬੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 7 ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, 8 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ। ਜੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਨਗਰੀ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਈ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਮਕੀਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ? 4 ਸਾਲ। 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? 48 ਮਹੀਨੇ। 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 30-31 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਮਸਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਈ ਕਿੰਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਧੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜੀ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
कि हे परमात्मा, गुरु अर्जन दे पिता महाराज ने सारी उम्र तेरे सरोवर बनाए, तेरे हरि मंदिर बनाए, तेरी बाणी दे ग्रंथ संपादित करवाए, कुष्ठ रोगियों दे इलाज कीते, फिर रब्बी सिफत सलाह दा हरि मंदिर बनाया, उहदे विच मर्यादा बन दिती। मैं इस गल दा कई बारी जिक्र किया है। करोल बाग दे वो सज्जन हर साल गर्मियां दे विच वो अज भी उन्हां दी जिहड़ी संस्था है वो पूरे इंडिया दे विच थां पर थां जाके बच्चों नूं पंजाबी गुरमुखी पढ़ाउंदी है। वो वीर जी नाल उन्हां दे सिस्टर भैन उन्हां दी सीसगढ़ साहब मेरी सेवा है, उत्थे मत्था टेकण आए तो जिथे कमरे च मैं बैठा सी उधर आ गए ते दरवाजे विच खलोते इदां हाथ रख के ना दरवाजे की बाही ते सरदल ते बोली जाते ने नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मैं अगों कह रहा, मैं क्या भाजी अंदर आ जाओ, की नहीं हो सकता। कहन लगे मैं सोचता आ रहा सी कि गुरु रामदास के घर विच कदे नहीं सुनिया कोई अनाउंसमेंट हुई होवे किसी की चाबी गवाच गई, किसी का काका गवाच गया। उत्थे कदे किसी की वड्याई नहीं सुनी, सिफत सलाह नहीं सुनी। आप जी ने भी नहीं सुनी होनी, सिर्फ केवल ते केवल गुरबाणी पढ़ी जाती है। तो कहते मैं सोच रहा सी भी जे अज नहीं हो सकता तो अगों भी नहीं होएगा, कि अज दे अगर प्रबंधक नहीं कर पाए कि वो कहन भी साड़ी महिमा करो तो अगों कौन कराएगा, कोई भी नहीं कराएगा। ऐसा दर किते नहीं हो सकता, इहो जिहा घर किते नहीं हो सकता। ऐसी मर्यादा किन्ने बधी? गुरु अर्जन साहब ने। ते हे परमात्मा, जिस गुरु अर्जन साहब महाराज ने इन्ने परोपकार किए, इन्ने पुण्य कर्म किए, इन्ने धर्म कर्म किए, ते आप जी ने उन्होंने तत्ती तवी ते बिठा दिता। केवल बिठाया ही नहीं, देखो बैठन नाल की है, थल्ले तो सेक लगता है, पर फिर उतो गर्म रेता पाना शुरू कर दिता सीस विच। की कोई शरीर का अंग कोई बचिया होएगा जिहड़ा ना झुलसिया होवे, ना सड़िया होवे? अजे भी गुरु जी कही जाते ने तेरा किया मीठा लगे। तो मैं फिर बेनती करनी चाहना कि साडे विचों कोई है कोई ऐसा जिहड़ा ये कहे कि परमात्मा तू जो कीता है चंगा कीता है ना। मैं अरदास तो बाद, हुक्मनामे तो बाद भी वो पंक्ति पढ़ी सी, सवेरे आसा की वार विच रोज पढ़ी जाती है। चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए। असी उत्थे खलोते हैं, जे चंगा हो गया वाहिगुरु ने बड़ी कृपा कर दी, ते जे थोड़ा जिहा माड़ा हो गया ये तो रब ने बड़ा ही माड़ा किया है। दसो तुसी रब नूं की समझदे हो? पिंड दा सरपंच? साडा सुभाव ही है, हर बंदे नाल इदां ही वरतदे असीं। एक बंदा सारी जिंदगी साडे चंगे काम करदा रहे, ये साडे बजुर्गां दे तत्त ने। कहंदे पुत्र सारी उम्र हसाउंदे रहो, तुहाडा हसाउना किसी ने याद नहीं रखना, पर एक घड़ी का रोना उन्होंने भुलेगा नहीं। तुसी लख काम किसी दे सारी उम्र करते रहो, कदे एक काम ना करो, फिर तुहानू पता लगेगा उसका रिजल्ट की है। असी तो इत्थे खलोते हैं, सब कीती कतरी गई।
मैं तो बहुत बारी बेनती करदा भी एक आदमी आया वो तुहाडे कोलों पैसे लै गया, फिर आया तुहाडे कोलों स्कूटर ट्रैक्टर मंग के लै गया, फिर आया कोई तुहाडे कोलों सिफारिश करके चला गया, फिर आ गया। हुण तुसीं उहदा काम नहीं कीता, पता की कहेगा, आ वड्डे बंदे हो गए, धौण च सरिया पै गया, हुण तक धौण ही नहीं घुमदी। कहंदे आकड़ ही इन्नी है भी पुछो जिहड़े पहला 3 काम कीते वो किहड़े खूह च पै गए बई, खत्म। साडा भी यही सुभाव है, चंगे चंगा कर मन्नै, मंदे मंदा होए। तो सतगुरु कहते ने आशिक ये ना आखी है जे लेख्या वरते सोए। इदां दे हुंदे ने प्यार करने वाले। आशिक का अर्थ की है? प्यार करने वाला। ये 2 शब्द ने, एक उन्हां आशिकां दा भी जिक्र भाई गुरदास ने कीता है जिहड़े मजाजी किस्म के लोग सन। लेला मजनू आशिकी, चौचक्की जाती, सोहनी मही वाल नूं नै तरदी राती, भाई गुरदास दी वार है। पर गुरबाणी दे विच हकीकी इश्क करन वाले जिहड़े रब दे दरवेश होए ने, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, उन्हां दा भी जिक्र है। जिहड़े सिर्फ रब दे दर्शन करने वास्ते तरसदे रहिंदे ने, उरते होए ने रब दे इश्क विच, इश्क खुदाए। इत्थे उन्हां आशिकां दा जिक्र है। सतगुरु पिता महाराज समझाउंदे ने कि भाई जिहड़े रब नूं सच्चा प्यार करने वाले लोग हुंदे ने ना, वो इस तरह नहीं करते ना। साडा तो पता ही कोई नहीं रब नूं चंगा कदों कह देना है ते माड़ा कदों कह देना है। 2 दिन पहला विआह हुंदा है, महाराज ने बड़ी कृपा कीती जी, बड़े चंगे रिश्तेदार लभ गए जी, ते 2-4 महीनों बाद मौत हो जाती है। आ ते रब ने जी बड़ा ही माड़ा कीता है। भी क्यों माड़ा कीता? तुसी रब दा की पैर विधिया सी बई? उही गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च लावां हुंदियां ने, तुसी कुछ होर बोलदे हो, उही महाराज की हजूरी च भोग पैंदा है, आपां कुछ होर बोलदे आ। गुरु अर्जन साहब ने यही सिखाया, रब 2 नहीं, रब इको ही है। चंगा भी उही करदा है, जिन्हों असी माड़ा कहने आ, ये भी उहदी रजा विच है, उहदे हुक्म विच है, उहदे भाणे विच है। ते जिसनों अपने मुंह तो चंगा क्या होवे, एडी छेती किवें माड़ा कह सकते हैं आप? जिन्हों आप कल तक कहते होइए नहीं जी वो तो बहुत ही चंगा है, तो हुण किवें खड़े खड़ोते कह दिए जी वो तो बहुत ही माड़ा है? रब माड़ा नहीं है। गुरु अर्जन साहब तो वड्डे पुण्य कर्म ना तुसी कर सकते हो ना मैं कर सकता। साडे च किहदी हिम्मत है कि कोई हरी मंदिर बना देवे, कोई गुरबाणी का ग्रंथ संपादित कर देवे। असी हर गल्ले रब नूं कोसदे हैं, पर उस दीन दुनिया के पातशाह ने तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। वो गुरु अर्जन जिन्हों भट्ट कहते ने प्रतख हार, जिहदे लई सतगुरु की बाणी कहती है
कि तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का खिवे चंदोवा। उगवणो ते आथ बनो, चौचक्की कीन लोआ। जिधरों सूरज चढ़ता है तो जिधर जाके छिपदा है। उगवणो ते आथ बनो, ये मेरे इलाके की बोली है हबोर दी। वो कहते होंगे ने बाई जी हुण तां आथर वेला हो गया, जिवें आपां कहने शामां पै गईयां। जदों सूरज डुबदा है, सूरज अस्त हुंदा है। आथण तो भाव है जिथे सूरज अस्त हुंदा है, डुबदा है, छिपदा है। चारा चक्कां विच गुरु अर्जन देव पिता जी की महिमा है। ते ऐसे पातशाह तवी ते बैठे अजे भी कही जाते ने, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। परमात्मा मैनू तेरा कीता मिठा लगदा है, पर यह सौखा नहीं है। सब तो औखा काम है परमात्मा दे भाणे नू मनना। जदों साडे घरां च कोई चढ़ाई कर जांदा है ना, हर वक्त व्यक्ति कहता है कोई नहीं जी महाराज दा भाणा है जी, सानू मिठा करके मनना चाहिए है जी। बहुत औखा है। चंगे नू चंगा करके ते मन्निया जा सकता है, चंगा चंगा कर मन्ने, पर माड़े नू भी किवें चंगा कह दीए जी। रब कोई जी घल देवे तो ठीक है, वापस किवें ले जा सकता है। क्योंकि साडा तो वन वे है ना। असी तो रब तो लेना जानते हैं, जो रब वापस मंगता असी इतराज करते हैं। अपनी अमान किश बहुर शौ ले, अज्ञानी मन रोस करे। चाहिदा की सी, जिसकी बस्त तिस आज्ञा राखै, प्रभ की आज्ञा माने मत है। फिर की होएगा, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। ये गुरु अर्जन साहब ही ने जिन्होंने सानू भाणा मनना सिखाया है। असी आम हालातां विच भी कदे आके इत्थे गुरु दे कोलों नाम मंगे, किन्ने किन्ने साडे विच जिहड़े इत्थे आके कहण कि राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। मैनू राज नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैनू मुक्ति भी नहीं चाहिए। अज जिहड़े सवेरे कथा हुई ना भगत कबीर जी के श्लोकां दी, शायद अज जां कल सी वो श्लोक सीगा, कबीर नरक सुरग ते हो रहे हो। कहते मैं छुट गया नरका स्वर्गा तो। मैं इन्हां चीज़ों तो मुक्त हो गया, ना मैनू स्वर्ग चाहिए, मैनू स्वर्ग का लालच नहीं, नरक का मैनू डर कोई नहीं। हम काहू की कान न कढ़ते अपने गुर प्रसादे। सानू इन्हां दोवां दी कोई मुथाजी नहीं है। साडे चो कौन है जिहड़ा इत्थे आके कहे कि विसर नाही दा तार अपना नाम दे। जे सानू गुरुद्वारे तो गुरबाणी दे गुटके मिलन असी लै जावांगे ना, ब्रेड पकौड़े लै जाएंगे, कोई चावल राजमा मिल लै जाएंगे। जी पूछो की है, ये प्रसाद है जी।
तो गुरबाणी के गुटके लै जाओ, पढ़ने पैणगे, कौन लैके जाए। देखो ना, छोले पूड़ियां तो खाधियां जाणगियां तो गुरबाणी कौन पढ़ेगा। अगर ये लिख दिता जाए गुरबाणी दियां पोथियां गुटकियां ते कि भाई ये लै जाओ, भेटा सिर्फ इन्नी है कि रोज पढ़ने ने, कोई नहीं लैके जाएगा। अच्छा, ब्रैड पकौड़े फड़ा के वेखो तुसी, कोई नहीं कहेगा जी मैं कल लै गया सी। सो अगले दिन पूछणगे भी अज नहीं वंडदे, भला कल तो वंडदे सी इत्थे। एक दिन दिओ, दूजे दिन ना दिओ, पुछणगे भी इत्थे कि कल छोले पूड़ियां वंडदे सी, अज नहीं भला वंडदे। असी गुरुद्वारे आके रब का नाम नहीं मंगते। ऐसो जग देखियो जुआरी, सब सुख मांगै एक नाम बिसारी। असी ऐसे जुआरीए गुरु की बाणी के अनुसार। जुआरीए कौन होंदे ने? जुआ खेडन वाले। जुए दे विच की औगण है? ये महाभारत तो वध कोई नहीं समझा सकता। एडे एडे वड्डे योधे, अर्जन वर्गे, दुर्योधन वर्गे, भीम वर्गे, तो जुए ने की कीता? जुए दी लत ने, जुए दी माड़ी आदत ने, जुए दे सुभाव ने की कीता? द्रौपदी वर्गी स्त्री जुए च हरवाती। शर्मसार होना पिया जदों अगले जुआरी, सामने जुआरी दुर्योधन वर्गे ने आख्या भाई मैं तो ये कपड़े उतारांगा। देखो, जुआरीए इस करके माड़े ने। जे पांडव जुआरीए होंदे, दुर्योधन जुआरिया ना हुंदा, राजा सी ना, उन्होंने कहना चाहिए सी खबरदार भाई, किसी ने इस बीबी, इस भैन दे वस्त्र उतारन की कोशिश की। वो कहता नहीं मैं उतारांगा, क्योंकि वह भी जुआरिया सी। जुआरीए बंदे नूं की पता तुहाडी इज्जत की ते अपनी की है, उन्होंने पता ही नहीं। शराब माड़ी है, क्यों माड़ी है? अपना पराया ना पछाणे। जुआ क्यों माड़ा है? इसे करके माड़ा है कि वह स्त्री जिन्हों अर्धंगनी कहा जाता है। पुछो गुरु हरगोबिंद साहब नूं, सतगुरु कहते औरत ईमान है। जुआ इस करके माड़ा है भी बंदा ईमान भी हार जाता है। देखो, हर गल दे विच अगे जाना चाहिए। क्यों गुरु साहब ने कहा जुआ नहीं खेडना? देखो, जुआ खेडन नाल ना ते मुर्गा मरदा है, ना कुकड़ी मरदी है, ना कोई चूचा मरदा है, ना बकरी मरदी है, कोई जीव हत्या नहीं होंदी, चार पत्ते ही सुटने ने ना। तो जुआ खेडण च भी नहीं है भी उहदे विच कोई नशा है, कोई शराब है, पर फिर भी इन्नी विरोधता क्यों? इसे करके कि जुआरीए दी जमीर मर जाती है तो अपनी घरवाली नूं भी जुए विच हार जाता है। सतगुरु ने जाके एक तशबीह सानू भी दे दी। ऐसो जग देखियो जुआरी, सब सुख मांगे एक नाम बसारी। वो बंदिया ना जुआरिया बन, तू गुरुद्वारे आना सारे सुख मंगदा है। पुत्र दे दिओ जी, पोतरा दे दिओ जी, घर दे दिओ जी, नौकरी दे दिओ जी, फैक्ट्री दे दिओ जी, वड्डी कार दे दिओ जी, वड्डा बंगला दे दिओ जी। सतगुरु कहते कदे थोड़ा जिहा पाठ भी मंग लिया कर भी महाराज थोड़ा जिहा जपजी साहब भी दे दिओ। चलो होर नहीं तो सोहला ही दे दिओ, मैं शाम नूं पढ़ते लिया करा कि संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देहो सज्जन आसीसड़ियां जो होवे साहिब स्यो मेल।
इस तो पहला कि दुनिया तुहाडा सोला पढ़े, अपना आपे पढ़ लिया करो रोज। उहदे विच पता लगेगा, उहदे विचों एक आवाज आएगी कि सदड़े नित पवन, वो वड्डे खलारे पाउण वाले आ, एक आवाज तेरे घर विच रोज आउंदी है, एक सदड़ा रोज आउंदा है, सुनेहा आउंदा है। तुसीं कहोगे जी किवें आउंदा है? जिवें अजकल तुहाडे फोन 'च SMS आउंदा है। अजे तुसीं लोन की किश्त 4-5 दिन बाद च देनी हुंदी है, पहला मैसेज आना शुरू हो जाता है कि भाई चेक कर लो बैंक दे विच इन्ना क बैलेंस हैगा। तुहाडे फोन का मैसेज आउण लग जाता है भी पैसे मुक्कण वाले ने, चार्ज करवा लो। ये सदड़े नित पवन, ये आवाज रोज आउंदी है कि बंदिया इत्थे रहना नहीं है, तू चले जाना है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने 2 बख्शिशां साडे ते कीतियां। अज दे दिन पहली सानू इस समझाया कि कदे भी रब दे कीते नू माड़ा नहीं कहना, इहो ही कहना है तेरा किया मीठा लागे। दूजा की कहना है? दूजा कहना है हर नाम पदार्थ नानक मंगे। भावें मैं तती तवी ते बैठा, मैं अज भी नहीं कहांगा तवी ठंडी हो जाए, मैं अज भी नहीं कहांगा चंदू नू कीड़े पै जान, मैं अज भी नहीं कहांगा कि जहांगीर तेनू कुष्ठ का रोग हो जाए, तू तरा तरा करके मरे। गुरु अर्जन साहब ने नहीं किया, किसी का बुरा नहीं मंगया। वो तो कहते ने सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। कहते मैं तो दुनिया को अपना मित्र बना लिया। चलो जे उन्होंने तवी ते बिठाया तो मैं उन्हों का बुरा नहीं मंगदा। कल आप ईर्खा की कथा सुनी है ना, ईर्खा च की हुंदा है? मैं फिर बेनती करा, क्रोध विच पहला सामने वाले का सिर पाड़ीदा है, ना बस चले तो फिर अपना सिर कंध नाल मारीदा है। पर ईर्खा च ऐसा नहीं हुंदा। ईर्खा च तुसीं अगले का कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना खून साड़ना है। तो ट्रकों वाले ने एक बड़ी वधिया गल लिखी होंदी है ट्रकों के मगर, वो कहते ने देंदा है रब, सड़दे ने सब, पता नहीं क्यों। वो सड़न वाले हो, सिखो कुछ। ईर्खा करन नाल अगले का कुछ भी नहीं जाता, तुहाडा बचदा कुछ नहीं है। अजे क्रोध करोगे ना, फिर डंडा चुकोगे, किसी का सिर पाड़ोगे, किसी का मर्डर करोगे, किसी की लत्त बांह तोड़ोगे। पर ईर्खा दे विच तां किसी की लत्त बांह बंदा तोड़दा ही नहीं, अपना ही खून सड़ी जाता है। असीं सड़दे रहने, अगला तरक्की करी जाता है, क्योंकि ये रब की एक मर्यादा है। तुसीं जिन्ना किसी का वैर विरोध करोगे, ये चेता रखना, वो उन्ना ही प्रफुल्लित होएगा। 1984 विच जिदा एक ट्रक सड़िया, उसकी ट्रांसपोर्ट बनी, जिदी एक दुकान सड़ी, उसकी मार्केट बनी, जिदा निक्का जिहा कारखाना सड़िया, उसदियां फैक्ट्रियां लगियां मुड़ के। बशर्त जिन्हां ने अफसोस नहीं किया, उन्होंने इस गल का प्राउड रहा कि जे अज मेरे नाल इस करके कुछ होया है तो उसका कारण है कि मैं सिख सी। तो कईयां ने मूँह सिर ही मना दिते। अच्छा, वो शर्मसार अजे भी नहीं होंगे। उन्होंने पूछो ना भी भाजी तुसी वो ज्ञानी जी है तो असी भी सिख परिवार चो ही हाँ, 84 जो सिर मनाना पै गया,
चलो 84 सिर मनाना पै गया, तो 85 च 86 च 87 च 88 च 90 च 2000 च 2010 विच 20 च 21 च कदे मुड़ के वाल रखने का मौका नहीं आया। नहीं शुक्र किया कि केसा तो खैड़ा छुटिया, दस्तार तो खैड़ा छुटिया, फिर गुरु ने उन्होंने बाह नहीं फड़ी। ये चेता रखना, पैसा जिंदगी च मैटर नहीं करता, आपां नूं भुलेखा है। पैसा जिंदगी च कुछ भी नहीं है। अज भी ये चेता रखना, जिन्हां परिवारां विच सिक्खी है, जिन्हां परिवारां दे विच गुरु की मर्यादा है, वो परिवार कदे भी खत्म नहीं हो सकते। उतरा चढ़ा जिंदगी का साड़ी गलती है कि असी हर बंदे नूं पैसे नाल ही तोड़ते हैं। किसी के कोल 4 पैसे वध ने, यह सौखा है जी, सौखा दे कोल जा घर जाके पूछो ना कितना सौखा है। किसी को 4 पैसे घट ने, असीं सोचते भी ये गरीब है, औखा है, उहदे घर जाके वेखियो कितनी खुशी है। वो सारा टब्बर किन्ने खुश माहौल विच रहिंदा है, शायद सानू नहीं पता, क्योंकि खुशियां पैसों नाल मिलदियां ते अमीरां ने बैंक के लाकरां च रख होणियां सी, गरीबां दे घर दी गली च नहीं सी वड़न देणियां, घर तां जाणियां दूर दी गल। इस करके रब दे कीते नूं मिठा करके मन्नीए, पहली गल। ते जदों गुरुद्वारे आईए उदों कहिए कि विसर नाही दातार, अपना नाम दे गुण गावा दिन रात, नानक चाहो यह। कुछ नहीं चाहिए, अंतरजामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै, मोको कर संतन की धूरे। मैनू अपने सिखां दे चरनां दी धूड़ी बना, मैनू कुछ नहीं चाहिए। जो आनंद इत्थे है, जो तुसी इत्थों सुख लैके जाने हो, जे घरां विच हुंदा ते इत्थे लैण नहीं सी आउणा तुसी। जो सुकून इत्थे तुहानूं मिलिया है, ये घर विच नहीं सीगा, तां ही आपां इत्थे आए हैं ना। आपां की कहने आ, गुरुद्वारे जाके बहुत अच्छा लगता है, बड़ी मन नूं शांति मिलती है। पुछो भी करोड़ा रुपया घर च लाता, शांति है नहीं घर च? नहीं, हो ही नहीं सकती। इट्टां जो शांति नहीं मिलती, मिलती तो भट्ठे वालियां दे घर चली जाती। शांति जदों मिलनी है गुरबाणी तो मिलनी है। शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे वाजे अनहद तूरे। ये शांति इत्थों ही आनी, सुख इत्थों ही आना है। इन्ने शब्द प्रवान करने, भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां। उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लेना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।